My name is Tejinder Singh Bedi. Today we are going to learn a subject which is multimedia and animation technology. The first topic is in this main topic is multimedia. Firstly, we learn what is multimedia. Firstly, understand the terminology multi. Do you know about the multi? Multi means many and multiple. Like for example, you are a many student in the class. Multiple tasking. These are the word is multiple and multi. And next terminology is media. This media is different. Now COVID-19 is running, and in this situation, everybody knows the media is news channels, paper. But in the computer field, we consider media as a text. Firstly, text. Then graphic. After that, voice, images, music. Text, which you see in books, write up, that is called the written text, computerized text, graphics. Voice, images. I am speaking, that is voice. You listen in the form of the audio clips, that is called the voice file. Images, whenever you see any person photographs, that is called the images. After that, music. Everybody know about the music, in which you listen about the some instrument and the person voice, that is called the music. After that, we write up the definition of multimedia. Multimedia. Multimedia is a combination of text, graphic, sound, animation, that word is very important, animation, and video, that is delivered interactively to the user by electronic or digitally manipulated means. We all discussed previous. Multimedia is a combination of text, graphic, sound, animations, and video. Animation word. Whenever you saw the picture is moving, that is called the animation. Multimedia have these 5 major components: text, audio, animation, video, and graphics. We'll learn about these in detail. जब भी आपसे कोई पूछे ग्राफिक्स का मतलब है कि जब कोई पिक्चर, ग्रुप ऑफ डॉट्स मेक्स a pixel, and after that pixel makes a image, and every image have 1,000 of words. हर पिक्चर कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट करती है. जैसे आप साइन बोर्ड देखते हो रोड्स के ऊपर,
स्टॉप लिखा होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है, कई बार सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप सब समझ जाते हो कि ये स्टॉप लिखा हुआ है। रेड कलर का अपना इम्पैक्ट है, ग्रीन लाइट से भी आप समझ जाते हो कि अब चलना है रोड साइड। ये सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज है। दो तरह की टाइप से आगे एनिमेशंस की भी और मल्टीमीडिया की भी, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। ए मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाई एज लीनियर व्हेन इट इज नॉट इंटरेक्टिव। ठीक है, जब वो इंटरेक्टिव नहीं होगा, यूजर्स इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो दैट इज comes in a linear category. User have no control over the content that is being shows them a linear. Example, a movie that is the good example of a linear. अब जैसे लेक्चर चल रहा है, ठीक है, आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, that is also comes under the category of linear. नॉन लीनियर हम मानते हैं इट इज इंटरेक्टिव, जिसमें आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो। जैसे कोई गेम है जिसमें आपकी एक्टिविटी चल रही है, आपके हाथ में कंसोल है, गेमिंग कंसोल है, रिमोट है, जैसे टीवी का रिमोट है, आप उसमें वॉल्यूम प्रेस करोगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा वॉल्यूम बटन से। ये हो गया नॉन लीनियर की कैटेगरी में। अब ये कहाँ पे यूज होता है मल्टीमीडिया? आजकल आप सबको पता है कि प्रेजेंटेशन बननी शुरू हो गई हैं, तो बिजनेस वर्ल्ड में भी और एजुकेशन वर्ल्ड में भी मल्टीमीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि यूज़र को हमने अपनी और अट्रैक्ट कैसे करना है, कि यूज़र की पार्टिसिपेशन कैसे हम बना सकते हैं। कि जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम, कि जैसे इस साल जैसे आपको कोविड-19 की सिचुएशन में भी बताते हैं, पहले पेशेंट इतने थे, इतने परसेंट थे, 50% थे, 30% थे, फिर 50 हो गए, फिर 80। अगर हम ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें यूजर को तो वो समझ आ जाता है। कलरफुली रिप्रेजेंटेशन। एजुकेशन में ई लर्निंग आ गया, जैसे हम आज ये बेस्ट एग्जांपल है मल्टीमीडिया की। देखो, हम आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी, डेट इज ऑल्सो अ मल्टीमीडिया। आप इंटरनेट की माध्यम से, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप एक जस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो को असेस कर सकते हो। डेट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीमीडिया। ई लर्निंग। आगे एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मल्टीमीडिया। इट्स ऑल्सो कम अंडर द मेन टॉपिक ऑफ मल्टीमीडिया। गेमिंग, मूवीज, जो भी आप जितनी भी आप गेम्स खेलते हो, जैसे मोबाइल में आपके गेम्स हैं, डेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीमीडिया। मूवी है, कोई मूवी आप देखते हो, 3D मूवीज आप थिएटर्स में जाके देखते हो, ठीक है, उसमें आपको एक 3D इफेक्ट्स देने के लिए गॉगल्स आप यूज करते हो, तो उससे आपको लगता है कि हम वर्चुअली उस चीज़ को बहुत पास में से देख रहे हैं। डेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमीडिया। ये मूवीज को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये 3D इफेक्ट्स दें आपको, 4D 3D। अब बहुत सारे आजकल स्मार्ट टीवीज में भी मल्टीमीडिया कंसेप्ट यूज किया जाता है। मल्टी गेमिंग, मल्टी टास्किंग, ये सारे कंसेप्ट अंडर द मल्टीमीडिया आते हैं। पब्लिक प्लेसेस में आप जाते हो, जैसे आप पहले कार्ड को असेस करते थे, अब क्या हो गया, वाईफाई के माध्यम से कार्ड को आपको असेस भी नहीं करना पड़ता। वर्चुअल आपकी मनी, उसका जो मशीन है, थ्रू द वाईफाई सिग्नल्स आपके कार्ड को रीड करते हैं। एक जस्ट कोड आप बोलोगे, जहाँ टाइप करोगे, उससे वो चीज़ असेस हो जाएगी आपका कार्ड। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपकी स्टडी वाइज भी आपको बेनिफिट्स हैं। उसके बाद क्या है, जैसे एजुकेशन वाइज कोई स्ट्रेटजी है, किसी को अट्रैक्टिव लर्निंग है, मोबाइल में आप गेम, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में ही बनती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने आपका सब्जेक्ट भी यही बनाया, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑडियो क्या है,
ऑडियो क्लिप्स, हाँ अब आप दोनों चीज़ें देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो और ऑडियो भी सुन रहे हो, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में ये टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है। एनिमेशंस क्या होती है, जब आपको पिक्चर्स कुछ, जैसे आप किसी को ग्राफिक मैसेज भेजते हो जिसमें आप मूव्स देख रहे होते हो, कई बार आप देखते हो कार्टून है वो मूव कर रहा है, दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ एनिमेशन। मल्टीमीडिया जैसे क्लासरूम्स भी हैं, जिसमें जैसे आपके कॉलेज में भी हम प्रोजेक्टर के ऊपर लेक्चर देते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया। सीडी है, डीवीडी है, डिफरेंट ये भी मल्टीमीडिया की कैटेगरी में आते हैं, डाटा स्टोरेज के काम के लिए यूज होती हैं। आजकल इनकी यूजेज कम होगी क्योंकि आजकल पेन ड्राइव आ गई हैं, ठीक है, कार्ड्स आ गए हैं, मेमोरी चिप्स आ गई हैं, वर्चुअल आपको मेमोरी मिल जाती है, जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं मल्टीमीडिया की, ठीक है। आज हमने ये बेसिक सेशन था आपका कि आपको इंट्रोड्यूस कराना, ये सब्जेक्ट आप क्या पढ़ोगे इसमें, क्या इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मेन हमने आज चीज़ें देखी हैं। एक तो मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है, कि मल्टीमीडिया होता क्या है। मल्टीमीडिया, मल्टी और मीडिया, मीडिया में सारे आ गए, ग्राफिक, साउंड, एनिमेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक, और मल्टी में मल्टीपल चीज़ें, ये सारी इसी दो चीज़ों को बना, वर्ड को जोड़ के बना है मल्टी और मीडिया। एनिमेशन जिसमें आप कोई चीज़ मूवमेंट में देखते हो। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आ जाता है, टेक्नोलॉजी में जितने गैजेट्स हैं, जो हम लेटेस्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आजकल, फाइबर ऑप्टिक्स, फास्टेस्ट इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, 4G, अभी 5G फ़ोन भी आ रहे हैं, ये सारे अंडर द कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी ही कंसेप्ट आते हैं सारे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन, ये आप सबने गो थ्रू होना है इससे। फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, हम आगे वाला टॉपिक करेंगे आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री एवेल्यूएशन सारा, उसमें हम मल्टीमीडिया का देखेंगे। इसको आप रिवाइज करना, वीडियो को देखना, ठीक है। वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो जो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, उसके आप क्वेश्चन के आंसर हम दे देंगे आपको, ठीक है। इसी से आपका जो ये टॉपिक है मल्टीमीडिया वाला वो फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।